Imagine you are an investor in Rico India Limited. सब कुछ स्मूथ चल रहा था and you were confident about your investment. Then, on November 14, 2015, the company announced that they couldn't meet their deadline for their quarterly results. Initially, it seemed like a minor administrative issue, but कुछ दिनों बाद Rico ने disclose किया that they were investigating possible fraud by senior management. इससे investors के बीच शॉक और टेंशन बढ़ गई. अब सोच रहे होंगे कि छोटे से डिले से क्यों इतनी बड़ी बात बन गई? Well, this is where the importance of quarterly reports comes in. They offer timely insights into a company's performance and can expose serious issues early on, जो शायद annual reports में मिस हो जाए. The auditor's report, जो quarterly filings का एक key part है, can be especially revealing. And if the company is not publishing it on time, it can be a serious red flag. क्वार्टरली रिपोर्ट्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट देते हैं. विद दीज आप असेस कर सकते हैं whether the company is on track to achieve annual and long-term goals or not. चलिए स्टार्ट करते हैं by when are the quarterly reports released. So public companies must release their quarterly reports every 3 months. India में financial year runs from April to March, so the quarters are Q1 April to June, Q2 July to September, Q3 October to December and Q4 January to March. ये रिपोर्ट्स टिपिकली क्वार्टर के एंड होने के 45 डेज के अंदर रिलीज किए जाते हैं. आप ये रिपोर्ट्स कंपनी की वेबसाइट पे अंडर इन्वेस्टर रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं. चलिए नाउ लेट्स क्विकली सी कि आपको एक क्वार्टरली रिपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स चेक करने चाहिए. फर्स्टली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन. ये डॉक्यूमेंट समराइज करता है द की हाइलाइट्स ऑफ द क्वार्टरली परफॉर्मेंस. इसमें इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक्स, स्ट्रैटेजिक अपडेट्स और फ्यूचर आउटलुक्स इंक्लूड होते हैं. In our case, we have opened the investor presentation of UltraTech Cement. Let's deep dive into the crucial sections of the presentation. Macro analysis. Here you can check for factors like GDP growth, interest rates, inflation, and industry trends as these have a significant impact on the company financials. Financial statements analyze करते वक्त focus on 2 key comparison metrics. Year over year, ये कंपेयर करता है the current quarter with the same quarter in the previous year, जैसे Q1 of 2023 with Q1 of 2024. And quarter over quarter, ये कंपेयर करता है the current quarter with the previous quarter. अब चलते हैं to the key financial metrics and how to interpret them. The first one is revenue growth. ये इंडिकेट करता है whether the company sales are increasing or decreasing. Consistent revenue growth एक पॉजिटिव साइन है जो दिखाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की स्ट्रॉन्ग डिमांड है. आप यहाँ एनालाइज कर सकते हो अगर रेवेन्यू अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप हुआ है एंड इन्वेस्टिगेट द कॉज फॉर इट. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स. ये कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस को पहचानने में मदद करता है. अगर कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन रेवेन्यू उसके साथ नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन्स पे असर पड़ सकता है. You can examine key expenses like raw materials, employee salaries and operating costs. Unexpected spike in expenses might indicate inefficiencies or increased input costs. On the other hand, cost reduction initiatives can improve margins. Next important financial metric to analyze is profit margin. Profit margins दिखाते हैं कि कंपनी अपनी सेल्स को कितने इफेक्टिवली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है. अगर मार्जिन्स हायर हैं तो इसका मतलब कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है और उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइसिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग है. हायर प्रॉफिट मार्जिन्स का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कम रखती है और अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉफिटेबल प्राइस पे बेच सकती है. While analyzing, आप अलग-अलग प्रॉफिट लेवल्स को देख सकते हैं, like EBITDA मार्जिन. ये दिखाता है कि कंपनी इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है. हाई EBITDA मार्जिन्स ये बताते हैं कि कंपनी के कोर ऑपरेशंस एफिशिएंट है. पैट मार्जिन. पैट मार्जिन दिखाता है कंपनी सब एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस के बाद कितनी नेट प्रॉफिटेबल है. नाउ लेट्स कवर द अदर इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स एज वेल. सेगमेंटल परफॉर्मेंस. ये प्रोवाइड करता है इंसाइट्स इनटू डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स और ज्योग्राफिकल रीजन्स. Key performance indicators include segmental revenue, intra-company group dealings, segmental net profits and segmental capital employed. In the case of UltraTech Cement, आप देख सकते हैं कि segmental sales growth year on year काफी अच्छी रही है और double digits में है, लेकिन quarter on quarter growth low रही है. Next comes balance sheet. ये ऑफर करता है a snapshot of the company's financial position at the end of the quarter. यहाँ पे you can focus on assets, current and non-current assets, liabilities, current and non-current liabilities and equity, shareholders equity.
लेवरेज, एसेट ग्रोथ और लायबिलिटी मैनेजमेंट में चेंजेस को समझना कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क प्रोफाइल को समझने में मदद करता है। हाई डेट लेवल्स रिस्की हो सकते हैं, स्पेशली अगर कंपनी की अर्निंग्स इंटरेस्ट पेमेंट को कवर करने के लिए इनसफिशिएंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ असेस करने के लिए जरूरी है। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी कितना पैसा बोरो कर रही है कंपेयर टू इट्स इक्विटी। हाई रेशियो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इंडिकेट करता है क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी का रिलायंस डेट पे ज्यादा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से कंपनी की एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट समझ आती है। अगर ये रेशियो लो है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स कंफर्टेबली कवर नहीं कर पा रही है। इससे कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशंस और डेट ऑब्लिगेशंस टाइमली पूरा करने की कैपेसिटी का पता लगता है। नेक्स्ट इज कैश फ्लो एनालिसिस। इट्स अनदर इंपॉर्टेंट मेट्रिक जिससे आप कंपनी के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करते हैं। ये आपको इंसाइट्स देता है इनटू द कंपनीज लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू फंड ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल रिफ्लेक्ट द कैश फ्लोज फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस। Investing activities will reflect the cash flows from investments in assets and securities, while financing activities will reflect the cash flows from debt, equity, and dividend payments. A very simple way to look at the cash flow statements is to simply use screener.in and go to the cash flow section. इन 3 सेक्शंस के ब्रेकअप्स को देखना फाइनल नेट कैश फ्लो से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल्स, Con call transcripts are another place to get insider insights. These are sessions where management quarterly results discuss करती है with analysts and investors, giving insights into management's perspectives, strategies and initiative, and answers to analyst questions. Con calls analyze करके आपको मैनेजमेंट की प्लान्स और कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी समझने में हेल्प मिलती है। You can pay attention to management commentary, which is basically insights into performance and future plans. Second, outlook, which is management's expectations for future quarters. And third is capex plans, which is planned capital expenditures and investments. Lastly, auditor's report. यह रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के ओपिनियन को कंपनी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के बारे में दिखाती है। यह सेक्शन ऑफन ओवरलुक किया जाता है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इश्यूज या रेड फ्लैग्स को रिवील कर सकता है। जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट के ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्लियरली विजिबल है, वहां ऑडिटर ने कोई रेड फ्लैग्स नहीं पोस्ट किए हैं। आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट करते वक्त इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेट्रिक्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सीमेंट इंडस्ट्री में यू कैन लुक एट एबिटा पर टन, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। सिमिलरली, हॉस्पिटल्स के लिए यू कैन प्रोबेबली लुक एट द एवरेज रेवेन्यू पर बेड, जो हॉस्पिटल के रेवेन्यू जनरेशन की एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। There are many more metrics specific to a particular industry and you will be able to find them in the quarterly as well as annual reports of the company. इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं by analyzing the quarterly reports of the companies you are invested in. We hope you found this video helpful. If you have any doubts, let us know in the comment section. And for more such insightful content, don't forget to subscribe to Stockroom.